हे गाइस, जय दिस साइड। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो कि होने वाला है व्हाट इज इकोनॉमिक्स। सो इकोनॉमिक्स जो है एक सोशल स्टडी है, जो कि पढ़ता है अबाउट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इकोनॉमिक का कोई एकदम ऐसे स्पेसिफाइड मीनिंग नहीं है, बट ये नॉर्मली बिजनेस के अंदर जो भी प्रोडक्शन होता है, जो भी हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वो सब के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि दिया है, इकोनॉमिक इज अ subject that assume great importance in the field of social science. In our day-to-day life, we use a lot of economic concepts such as goods, market, demand, supply, price, inflation, banking, tax, lending, borrowing, interest of rate of interest, etc. Similarly, we can take economic decision related to the distribution of our income to purchase various goods, making a budget to do some work, taking up to a job to earn, withdrawing money from bank, etc. We also observe and get information on the economic situation of our society or country, for origin country and the world. सो इकोनॉमिक्स के अंदर नॉर्मली हम लोग ये सब के बारे में ही पढ़ते हैं। वी यूज अ लॉट ऑफ इकोनॉमिक कंसेप्ट सच एज रेट, ये सब कुछ हम लोग डे टू डे लाइफ में भी यूज करते हैं। आज भी घर में हम लोग बजट्स बनाते हैं, तो ये सब कुछ नॉर्मल इकोनॉमिक्स जो है वो हम लोग इंडिविजुअल लेवल पे करते हैं, वो सब कुछ दिया हुआ है। सो मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक, इकोनॉमिक इज अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट। उसका कोई भी सिंपल मीनिंग नहीं है यहाँ पे दिया। डेफिनेशन और मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक एज अ स्कोप एंड द एरिया कवर्स आर वेरी लार्ज. Various scholars and author have tried to give its meaning and objective, but कोई भी specified meaning and objective अभी तक नहीं है. So many scholars and authors in the late 18th and early 19th century believe that economic is a science of wealth, कि एक science है wealth का, wealth यानी संपत्ति. These scholars are called classical thinker. They view the economic deal with the phenomena of wealth, which includes nature and cause of wealth, creation of wealth by individual and nations, etc. The problem with wealth definition was that it did not talk about people who had no wealth. तो जिसके पास wealth नहीं है, उसके बारे में इस वाले डेफिनेशन में, जिसके अंदर हम लोग को ये कहा गया कि साइंस जो है वेल्थ है, साइंस ऑफ वेल्थ, इकोनॉमिक इज अ साइंस ऑफ वेल्थ, उसके अंदर सिर्फ पैसे वाले लोगों की बात करी गई है, ना कि गरीबों की. So they are having wealth and not having wealth defined the society into rich and the poor. So many scholars in the early 19th century thought that economics should address the issue of welfare of the society. तो उसके बाद जब welfare of the society के बारे में भी सोचना चाहिए, ऐसे प्रस्ताव रखे गए. उसके बाद एक और ऑथर ने ये डेफिनेशन दिया कि इकोनॉमिक वाज सीन एज साइंस ऑफ वेलफेयर. वेलफेयर इज बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव. क्वांटिटेटिव का मतलब नंबर्स, क्वालिटेटिव का मतलब क्वालिटी इन नेचर. Consumption of goods and services, increase in per capita income are quantitative aspects of welfare. Living in peace, enjoying leisure, acquiring knowledge, etc. are qualitative aspects of welfare. As welfare of science, economics was said to be concerned with the quantitative welfare only because it can be measured in the terms of money. सो ये सब डेफिनेशंस आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट नॉर्मली ये भी एक डेफिनेशन है कि साइंस ऑफ वेलफेयर है, ये भी एक डेफिनेशन है कि साइंस इज अ वेल्थ. तो ये सब कुछ आपको बस याद रखना है कि ये डेफिनेशंस के जो यहाँ पे ऑलरेडी पॉइंट हाईलाइटेड है, वो सब कुछ खाली आपको ज़्यादातर दिख के जाना है. The welfare definition of economic explain only the material aspects of welfare, but people want both material goods and non-material goods. तो ये definition जो उन्होंने दी welfare के ऊपर, उसमें भी कुछ पॉइंट्स निकले कि इसमें सिर्फ मटेरियल गुड्स के बारे में बात करी जा रही है, नॉन मटेरियल गुड्स के बारे में बात नहीं करी जा रही. Since services available with every individual or society are scarce, people try to achieve their goals by alternative use of resources, which they do making appropriate choice. So economics are treated as science of scarcity and choice as well. स्कैरसिटी का मतलब होता है यहाँ पे कि कोई भी चीज का कम होना, यानी लिमिटेड रिसोर्सेस होना, उसको हम लोग स्कैरसिटी बोलते हैं. As science of scarcity and choice, economics studies human behavior, relationship between ends and means that which are scarce and have alternative uses. तो यहाँ पे ends का मतलब होता है want, और यहाँ पे scarce का मतलब होता है लिमिटेड रिसोर्सेज. यहाँ पे नीचे दिया.
अकॉर्डिंग टू दिस स्कैरसिटी डेफिनेशन जो हम लोग ऊपर अभी पढ़ के आए, limited resources can be used alternatively. Take the example of production of two goods, cloth and wheat. We can produce unlimited amount of cloth and wheat with a limited amount of resources. The resources have to be divided to produce the goods. Like demand for one good says that wheat increase so that it to be produced in larger quantity, for which need more resources. But given that resources are limited, we can produce one more wheat only by withdrawing some resources from the production of cloth and putting them in production of wheat. As a result, cloth production will fall and wheat production will increase. In this example, we have two alternatives. So यहाँ पे जिस तरह से एग्जाम्पल दिया है, एक क्लोथ का दिया है और एक वीट का दिया है। सो जब भी हम लोग क्लोथ का प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज करने का सोचा, आप प्रोडक्शन इंक्रीज क्यों करेंगे? जब डिमांड ज्यादा होगी, डिमांड ज्यादा होगी मतलब मान लीजिए आपका एक प्रोडक्शन का फैक्ट्री है, वहां पे आप क्लोथ भी प्रोड्यूस कर रहे हो और साइड बाय साइड आपका वीट का बिजनेस भी है। सो आपको ऐसा पता चलता है मार्केट रेंट से कि क्लोथ का जो डिमांड है, क्लोथ का जो क्या कहते हैं यूजेज है वो बढ़ गया है, वीट का लेकिन कम हो गया। तो वीट के बदले अभी लोग ज्यादातर बाजरा वो सब यूज कर रहे हैं, तो क्लोथ का लेकिन वो क्या बोलते हैं डिमांड बढ़ चुका है। तो आप क्या करोगे? जाहिर सी बात है कि वीट का प्रोडक्शन कम करके क्लोथ का प्रोडक्शन बढ़ा दोगे। तो यहाँ पे आपने क्या किया, चॉइस ये की, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेस इतना लिमिटेड है, आप दोनों का प्रोडक्शन एक साथ इंक्रीज नहीं कर सकते। बट आप ऐसा कर सकते हो कि डिमांड जिसकी ज्यादा है मैं उसका प्रोडक्शन ज्यादा कर लूँ, और डिमांड जिसकी कम है उसका प्रोडक्शन थोड़ा कम कर लूँ। सो ऐसे स्क्वायर्स एंड एंड होता है। एंड्स का मतलब होता है कि वांट, जो लोगों की ज्यादा किस चीज के ऊपर वांट है। अगर वीट के ऊपर ज्यादा वांट है, मतलब वीट का प्रोडक्शन ज्यादा चाहिए लोगों को, डिमांड ज्यादा है लोगों के बीच में, यूजेस ज्यादा हो रहा है वीट का, लोग रोटी बनाने के लिए ज्यादातर वीट यूज कर रहे हैं, लेकिन क्लोथ का प्रोडक्शन जो है वो कम हो गया है। अम, कहाँ पे थे हम? हाँ, तो वीट का प्रोडक्शन अगर हम लोग को ज्यादा करना है तो हम लोग को रिसोर्सेस लिमिटेड है, इस वजह से क्लोथ का जो प्रोडक्शन है उसको कम करना पड़ेगा। सो ये यहाँ पे दिया हुआ है, आपको भी सब इतना याद करने की जरूरत नहीं। हाँ, बट एग्जाम्पल देखकर जाना, एग्जाम्पल में से भी कुछ पूछा जा सकता है। कीप प्रोड्यूसिंग द सेम अमाउंट ऑफ क्लोथ एंड वीट। या तो एक आप ये कर सकते हो कि मतलब यहाँ पे जैसे दो अल्टरनेटिव आपके ऊपर है, आपके आपके ऊपर चॉइस है कि आप दोनों का प्रोडक्शन इक्वल रख के आप चला सकते हो, क्योंकि किसी का भी डिमांड इतना इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हुआ है। या तो आप ऐसे कर सकते हो जिसका डिमांड ज्यादा है उसका प्रोडक्शन आप इंक्रीज कर दो, या तो जिसका क्या कहते हैं उसे, डिमांड कम है तो उसका प्रोडक्शन कम कर दो। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। Since the economic wants more wheat, the study of economics tells us how this problem can be solved with limited resources. तो इकोनॉमिक वांट जो है, अगर वीट का ज्यादा है, वीट का ज्यादा डिमांड है, तो इकोनॉमिक हम लोग को ये बोलता है कि किस तरह से लिमिटेड रिसोर्सेज के होने के बावजूद हम लोग वीट का प्रोडक्शन इंक्रीज करके क्लोथ का प्रोडक्शन कम कर सकते हैं। In the 20th century, the objective of achieving growth and development of the entire economy gained momentum. तो ग्रोथ और डेवलपमेंट का एक इंटायर मोमेंटम जो है वो ज्यादा बढ़ने लगा। रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बिकम इंक्रीजिंगली इम्पोर्टेंट। सो इकोनॉमिक्स नो लॉन्गर रिमेन्ड लिमिटेड टू इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग एंड यूज ऑफ रिसोर्सेज ओनली। इट्स गोल्स हैज बीन एक्सपांडेड टू इंक्रीज प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ कमोडिटीज ओवर टाइम, so that the economy achieves growth and development. तो एक ऐसा टाइम है जहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भी आया, वहाँ पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ज़्यादा देखने को मिला। तो उस हिसाब से जो इकोनॉमिक्स है वो लिमिटेड लोगों तक नहीं, मतलब इंडिविजुअल लोगों तक नहीं रही, उसको अब गवर्नमेंट्स भी यूज कर रही थी ताकि उन लोग इकोनॉमिकली मतलब पूरे वर्ल्ड इंडिया का ग्रोथ और डेवलपमेंट किस तरह से करें। So, economics is treated as a science for growth and development. In fact, it is true that nowadays people talks about well-being of individual and the whole nation.
It is understood that for an individual to be able to satisfy his or her want, it is necessary that the whole economy must grow and find proper mechanism to distribute the benefit of growth among the individual citizen. तो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर एक सिंगल आदमी सिंगल औरत अपना वांट अगर सेटिस्फाई करना चाहे तो उसको इकोनॉमिक ग्रो किस तरह से हो रहा है, इकोनॉमी चलता किस तरह से, उसको उसका नॉलेज होना चाहिए. द होल इकोनॉमी मस्ट ग्रो एंड प्रॉपर मैकेनिज्म टू डिस्ट्रीब्यूट द बेनिफिट ऑफ ग्रोथ अमॉन्ग द इंडिविजुअल सिटीजन. तो एक इंडिविजुअल सिटीजन तक वो ग्रोथ किस तरह से पहुंचाई जाए वो भी हम इकोनॉमी के थ्रू ही पढ़ते हैं. So performance of the economy is very important in terms of use of the resources and production and distribution of goods and services. तो यहाँ पे जैसे कि दिया है कि so the performance of the economy is very important in terms of use of resources and production of distribution of goods and services. तो परफॉर्मेंस हम लोग का इकोनॉमी का इतना जरूरी हो गया है कि रिसोर्सेस एंड प्रोडक्शन में, डिस्ट्रीब्यूशन में गुड्स एंड सर्विसेज की यूज होना चाहिए. The economy must allocate its resources among various alternative activities, ensure the in efficient use and find a way as how they would grow our future development of the economy. On this basis, many economies in the world have performed well. For example, USA, Europe countries, जापान एक्सेट्रा आर डेवलप्ड इकोनॉमिक्स. तो लोग का जो इकोनॉमी है वो डेवलप्ड है बिकॉज दे हैव हायर अचीव्ड हायर लेवल ऑफ इनकम फॉर देयर सिटीजन. तो जो जैसे हमारे इंडिया में अगर आप महाराष्ट्र का ले तो पर कैपिटा इनकम आज के टाइम पे 15,000 है, लेकिन वही आप अगर उत्तर प्रदेश का देखोगे, यूपी का देखोगे तो उसका पर कैपिटा इनकम बहुत ही कम है. महाराष्ट्र से कंपेयर करोगे तो बहुत ज़्यादा ही कम है. सो अगर किसी कंट्री का पर कैपिटा इनकम एवरेज अगर हम लोग पूरा स्टेट का मिला के निकाले तो अगर वो कम है बहुत ही ज़्यादा तो वो डेवलप्ड कंट्री के अंदर काउंट नहीं होगा. वैसे यूएस के अंदर अगर आप एवरेज मतलब एवरेज जानोगे कि पर कैपिटा इनकम एवरेज कितना है तो वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू इंडिया. सो वो लोग की कंट्री ने इकोनॉमिक्स इस तरह से अचीव किए कि उन लोग का जो पर कैपिटा इनकम है वो बहुत ज़्यादा है ऑफ इंडिविजुअल पर्सन का. our Indian economy is a developing economy जो डेवलप हो रहा है still because many of the citizens are still poor. बहुत ही गरीब है आज के टाइम पर भी. The society of economy tells us that the state of our economy and guide us to achieve higher level of growth and development. तो इकोनॉमी की स्टडी से हम लोग जो है उस तरीके से गाइड हो चुके हैं कि हम लोग अभी इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं. Economists of 20th century have also started talking about the welfare of future generation and production of natural environment. Hence, the economy is also treated as science of sustainable development. तो sustainable development का मतलब जैसे EVs अभी आ रहे हैं जिससे कि हम लोग का एयर पोल्यूशन कम होगा, तो आने वाले फ्यूचर के लिए भी इकोनॉमिक किस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं वो सब के बारे में भी आजकल के टाइम पे बात हो रही है. So economic is a science of wealth. What does this imply? तो इकोनॉमिक एक साइंस है, वेल्थ है, जो कि स्टडी करता है ऑफ प्रोडक्शन एंड दिया था आंसर रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. विच एस्पेक्ट्स ऑफ वेलफेयर डज इकोनॉमिक डील्स एज अ वेलफेयर ऑफ साइंस. तो यहाँ पे आंसर आपको नीचे दिया है. क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ वेलफेयर के बारे में हम लोग सोचते हैं. फिर इसके बाद आता है ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स. तो इसके अंदर दो ब्रांचेस हैं हमारे, एक तो है एक माइक्रो इकोनॉमिक और एक है मैक्रो इकोनॉमिक. तो माइक्रो मीन्स होता है वेरी स्मॉल और माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो इंडिविजुअल लेवल पे डिसीजन मेकिंग कैसे करे, बजट कैसे बनाए, वो सब के बारे में बात करते हैं. तो ये हम लोग जब आंसर पढ़ेंगे तब पढ़ लेंगे, इसके ऊपर कोई मेजर क्वेश्चन तो है नहीं, बट आप ये रीड कर लेना, ठीक है, खुद भी कुछ रीड कर लो. फिर आता है मैक्रो इकोनॉमिक. मैक्रो इकोनॉमिक जो है, मैक्रो मतलब होता है लार्ज, और मैक्रो इकोनॉमिक जो है होल ऑफ कंट्री को किस तरह से इकोनॉमी हेल्प कर सके वो बताते हैं. इन कंपैरिजन टू द इंडिविजुअल द सोसाइटी और कंट्री और इकोनॉमी एज अ होल इज वेरी लार्ज. So, economic decision is taken at the level of economy as whole are subject matter of macroeconomics. Take an example. Economic decision taken by the government जो है वो macroeconomic. मतलब
माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर वो सारे डिसीजन मेकिंग्स आएंगे जो एक इंडिविजुअल खुद अपने लेवल पे कर सकता है, और मैक्रो के अंदर आएगा जिसके अंदर हम लोग पूरी कंट्री के हिसाब से, जैसे कि अगर मैक्रो का एग्जांपल दें, जैसे इन्फ्लेशन का कोई डिसीजन मेकिंग करना है तो वो मैक्रो के अंदर आएगा। अगर बजट के बारे में कोई एक इंडिविजुअल इंसान के बजट के बारे में कोई बात करनी है तो वो माइक्रो के अंदर आएगा। तो ये भी आप लोग रीड कर लेना। तो क्वेश्चंस कर लेते ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे पूछे इन्फ्लेशन इज स्टडीड अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो इन्फ्लेशन जो है वो मैक्रो के अंदर डिफाइंड होता है, तो ये बिल्कुल ही फॉल्स है इसका आंसर फर्स्ट वाले का। इसका आंसर फॉल्स है। फिर पूछा डिटरमाइन ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स इज द प्रॉब्लम अंडर मैक्रो इकोनॉमिक। तो डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स, अगर मान लो determination of price of a good is the problem under macroeconomic. तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर अगर आप एक सेल्समैन है, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हो तो उसका प्राइस कितना होना चाहिए वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर नहीं आता है, वो माइक्रो के अंदर आता है, क्योंकि वो इंडिविजुअल डिसीजन है, आपको जितने में बेचना है बेच सकते हो। फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स डील विद द इशू ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो गवर्नमेंट ही ये जो प्रॉब्लम है सॉल्व करती है एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, तो इसका आंसर आएगा थ्रू। फिर पूछा है माइक्रो इकोनॉमिक्स डील विद द इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग विद रिस्पेक्ट टू बाइंग अ गुड। तो माइक्रो इकोनॉमिक इसके अंदर बराबर से आते हैं, क्योंकि अगर आपको कितने में प्रोडक्ट खरीदना है कितने में नहीं, वो आपका इंडिविजुअल डिसीजन है, उसके अंदर गवर्नमेंट कुछ नहीं करती, तो इसका आंसर भी थ्रू है। फिर आता है पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि क्या है एक्चुअल में क्या बात है, और नॉर्मेटिव के अंदर आता है कि क्या होना चाहिए, क्या बात ये होना चाहिए या वो होना चाहिए, जिसके अंदर आप राय दे रहे हो कि नहीं मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, मेरे हिसाब से वो होना चाहिए। तो पॉजिटिव के अंदर नॉर्मली हम लोग साइंटिफिकली बात करते हैं कि क्या है, क्या एक्चुअल में क्या बात है, और नॉर्मेटिव के अंदर हम लोग नॉर्मली क्या होना चाहिए, जैसे हम लोग अपनी राय देते किसी भी टॉपिक पे, वो काउंट होता है। The study of economic individual both positive and normative aspects of terms, understanding that the event taking place under us, taking decision, prescribing rules and regulation, and implementing policies is to solve economic problem. Positive economic talks about what is मतलब क्या है, और whereas normative economics talks about what ought to be, क्या होना चाहिए, और what should be, क्या होना चाहिए. Positive economics talks about the thing happening or might happen in the economic world. तो क्या हो रहा है या क्या होगा उसके ऊपर हम लोग नॉर्मली बात करते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक के अंदर, लेकिन नॉर्मेटिव के अंदर हम लोग क्या होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए उसके ऊपर, जैसे कि जजमेंट देना उसको हम लोग नॉर्मेटिव के अंदर काउंट करते हैं. इंडिया's population have crossed 100 crore marks. India is the second largest populated country in the world. तो ये हमारा एक एग्जांपल हो जाता है अपना पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का, क्योंकि यहाँ पे हम लोग नॉर्मली एक्चुअल में क्या बात है, मतलब एक्चुअल में क्या हुआ है उसके बारे में बात कर रहे हैं. अब यहाँ पे आप सेकेंड ऑप्शन देखो, इंडिया शुड नॉट अलाउ इट्स पॉपुलेशन टू ग्रो सो फास्ट. तो यहाँ पे कोई जजमेंट दे रहे कि हमें अपना पॉपुलेशन जो है वो फास्ट तरीके से नहीं ग्रो करने देना चाहिए, इट मस्ट कंट्रोल इट्स पॉपुलेशन. तो ये जो है वो नॉर्मेटिव के अंदर आएगा, क्योंकि इसके अंदर हम लोग जजमेंट पास कर रहे हैं. तो ऐसे यहाँ पे एक और एग्जांपल है, वर्कर्स विल वर्क हार्ड इफ दे आर गिवन मोर वेजेस. तो यहाँ पे हम लोग एक तरीके से बोल रहे हैं कि अगर हम लोग पैसे ज्यादा देंगे तो हम लोग ज्यादा काम करेंगे. तो ये भी जो है वो एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, क्योंकि जाहिर सी मतलब एक फैक्ट बात है. Factories should increase the wage rate of worker to provide justice for hard work. तो ये एक नॉर्मेटिव स्टेटमेंट है, क्योंकि इसके अंदर हम लोग ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा करेंगे तो वैसा होगा, तो वो भी एक जजमेंट के हिसाब से बात हो रही है.
इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग बाय इंडिविजुअल और गवर्नमेंट और बिजनेस फर्म इन्वॉल्व्स बोथ पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव एक्सपेक्टिव। जब एक डिसीजन मेकिंग हो रहा रहता है गवर्नमेंट का या हमारा भी, तो हम लोग दोनों तरीके से देखते हैं कि एक्चुअल में क्या बात है और अभी क्या करना चाहिए। तो हम लोग दोनों चीज़ों का यूज करके एक डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो यहाँ पे पूछा आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव। तो इधर पे पूछा इंडिया हैज लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीपल, तो ये एक फैक्ट है, तो ये आएगा हमारा पॉजिटिव। फिर पूछा बोला है कि द गवर्नमेंट शुड स्पेंड मोर ऑन एजुकेशन, तो यहाँ पे राय दी जा रही है कि गवर्नमेंट को स्पेंड करना चाहिए ज़्यादा एजुकेशन पे, तो ये हमारा हो जाता है नॉर्मेटिव। फिर पूछा है कि पॉजिटिव पुअर पीपल आर सफरिंग ड्यू टू प्राइस रेज ऑफ इसेंशियल कमोडिटीज, तो यहाँ पे भी एक फैक्ट बात करी जा रही है कि नॉर्मल इसेंशियल कमोडिटीज का प्राइस ज़्यादा हो रहा है, इस वजह से लोग मर रहे हैं, तो ये भी एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। फिर बोला है बैंक हैज इंक्रीज इट्स इंटरेस्ट रेट, तो बैंक ने इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर दिया, तो ये भी एक पॉजिटिव बात है, मतलब एक फैक्ट बात है, तो इसको पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बोलेंगे। पीपल शुड बी इंकरेज टू सेव इन पोस्ट ऑफिस एंड कमर्शियल, तो ये भी एक राय दी जा रही है, तो यहाँ पे ये नॉर्मेटिव। तो जहाँ पे भी राय दी जा रही है वो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है, और जहाँ पे भी फैक्ट की बात की जा रही है वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। तो हम लोग ने यहाँ पे क्या क्या पढ़ा, वेलफेयर स्कैरसिटी, जो कि हम लोग ने वो डेफिनेशन इतना ज़रूरी नहीं है, तो ज़्यादा ध्यान नहीं इधर। फिर मैक्रो एंड माइक्रो, इसको हम लोग आंसर करेंगे, तब इसके बारे में डिटेल बात करेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक डील विद इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग ऑफ इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशन, ये हम लोग ने मैंने बता दिया। और माइक्रो इकोनॉमिक्स डील विद इकोनॉमिक एग्रीगेट्स एट द लेवल ऑफ होल इकोनॉमी, तो होल इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे हैं, ये भी हम लोग ने पढ़ लिया। फिर हम लोग ने नॉर्मेटिव एंड पॉजिटिव के बारे में भी बात कर लिया। तो बस हमारा भी टर्मिनल क्वेश्चन बचा, जो कि मैं अगले वीडियो में कवर करूँगा। इसके अंदर मैं सारे क्वेश्चंस को आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, और इसके अंदर ही हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिटेल डिस्कशन भी कर लेंगे। बाकी यहाँ पे आंसर दिए हुए हैं, तो ये छोटे छोटे आंसर्स आपको 1, 2, 3 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे, तो ये भी आप कवर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।